Network is very poor right now. अरे सबकी सबकी लगी हुई है. अच्छा चलो ठीक है. All right. Shalini is also joining in. Yeah, hello, Shalini. How are you? Okay, so then what we do is, Now can you? Shalini कुछ बता रही है? म्यूट पे है शायद. मैं उसको बोल रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ that she's on mute. Shalini, you're on mute. You have to unmute yourself. Message. No, she can hear. Okay, so who's running the presentations? Sangeeta, you'll run? So no, both the doctors will be running themselves. Naveen ji will be sharing the screen with them. Naveen is not there on this call. Naveen? Oh, he's not there. Huh. Acha, Okay. okay, Sasha can do the screen share. Hello. Yeah, Shalini ji, bataiye. Okay. Hello. Good evening. Good evening. How are you? Okay, Sasha, that's fine. You can run your presentation. Shalini ji, Yeah, ma'am. Yeah. are you, Shalini ji, Hello. are you Yeah. comfortable with running your presentation? Yep. I'm fine now. Okay, so then do you want to start your screen share and you want to just quickly do that? Okay. 1 second. Sasha, you have to stop the screen. You have to stop sharing your screen. Let her just run it. Yeah, yeah, Shalini, can you run your screen, please? Yeah. शेयर स्क्रीन दबाना होगा. शेयर स्क्रीन दबाना होगा. So this is, I think. Perfect. You are on. And you please, Shalini, go to the presentation. Slideshow. Yeah, slideshow. Perfect. है ना? तो बहुत अच्छे. So So this I think would you're all be set. it. Huh? Okay. Yeah. Okay. Fine. So Sangeeta, I'm going to be on mute and I will be actually off, huh? But it'll be on, but I won't be attending, huh? So Okay. you will take this through, Naveen. Sure. Hello, Naveen. I am just joining it in 5 minutes. So how are you doing both? दोनों दो कैसे कर लिए? You are the host for this meeting, na? अच्छा, ठीक है. Don't worry, I'll reclaim your host in a couple of minutes. Okay, fine. So we are starting first with Dr. Shalini. No, we are starting with Shazia. Okay, Sasha. Then why don't you start? Shalini ji, आप अपना screen पे हटा लीजिए. Sasha, Yeah. you can, 1 second. I'll you just can stop do sharing. that. Give me half a minute. So first, Sangeeta, you have the other screen saver. The other screen saver. How would that Naveen ji's got? I don't have it. Oh, Naveen, can you please start Put the other. जो इनका creative बनाया था ना नवीन जी, वो लगा दीजिए. Acha, and is NBT doing a direct Facebook whatever live streaming? That's right. That's right. Okay, I saw Roli coming in. So Naveen, you need to be here. Okay. Avni, can you tell us to change this cup? Yeah. Thank you. And I need a. I think this should be fine. Roli. नमस्कार. अच्छा ये बताइए कि आप अपना ये इसको वो कर रहे हैं क्या? लाइव कर रहे हैं? फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं. Okay. Kali, I am doing it. Don't worry. Okay, fine. So you're there, right? Yeah, I am doing it. Okay, perfect. So Naveen, then you can please do your broadcast bit. नवीन जी ये वाले की जगह चारों लोगों वाला लगा लीजिए ना अभी. ये अमर उजाला के लिए बनाया था हमने. Creative. नहीं, but that's all right, Sangeeta, because if they're going to be broadcasting it live. यही भेजा ना, मुझे यही मिला था. ठीक है. This is fine. ठीक. This is fine. ठीक. Okay, so then I'm just going to be. Can I exit? You're going to be there, na? No, you can't exit. You are the host for 3 minutes more. Till I reclaim my host, just wait.
Okay, okay, fine. I'm very much there, but I'm not there. How do I mute myself? तो Acha, जैसे here, it is there. It is हाँ there. I can see it. हाँ Thank you. Okay, in the meantime, I think you get your PPT. Yeah, yeah, yeah. So I will request Dr. Shalini that आप थोड़ी सी बातचीत करें डॉक्टर शालिनी कि फिजिकल Done एंड हो गया? हाँ जी Is done? Can you see the screen? यस So I'll start. ओके Okay, so thank you so much for inviting me as a panelist, and thank you so much for all the participants for being here. और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना अहम क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो चीजें हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, लाइक गोइंग टू स्कूल, लाइक गोइंग टू कॉलेजेस, लाइक हैविंग अ प्रॉपर रूटीन, सुबह उठना, काम पे जाना, एक्सरसाइज करना, या घर पे रहना, बाई आ रही है, हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं, वीकेंड पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, दैट हैज बिकम अ लग्जरी. तो जब किसी भी चीज का लॉस होता है, स्पेशली हमारी फ्रीडम जो हमारा बेसिक राइट है, हमारी मोबिलिटी जो कि अगेन हमारा बेसिक राइट है, जब वो खत्म होता है तो क्या होता है? जब आप कुछ चीज खो देते हैं तो क्या होता है? आप मोन करते हैं, आप ग्रीफ में जाते हैं, आपको तकलीफ होती है. तो जब हम तकलीफ में होते हैं हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? एंजाइटी के साथ, परेशानी के साथ,
बट आई वुड से कि थोड़ा बहुत परेशान होना, एंग्शियस होना नॉर्मल है, वो अडेप्टिव है। वो क्यों अडेप्टिव है? क्यों? क्योंकि अगर हम डरेंगे नहीं, अगर हम परेशान नहीं होंगे। आपकी पीपीटी शेयर नहीं हो रही है, या आपका व्हाट्सएप खुला हुआ है? You need to what on the PPT only. हाँ, You need to click on the share screen and click on the PPT which you are presenting. I can see the PPT right now in front No, of you me. can see, but people are not able to see. अच्छा, तो what do we need to do? Okay. Is it okay? अब आ गया? Yeah, now it is there. It is there? Okay. So where I start was कि थोड़ा बहुत anxiety normal है. Okay, अगर हम anxious नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम paranoid नहीं होंगे, तो शायद हम norms को follow भी ना करें। हमको लगे यार हमें तो कुछ नहीं हो रहा। So, but एंजाइटी कब एबनॉर्मल बन जाती है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम कब भी डिसाइड कर सकते हैं कि यार अब प्रॉब्लम हो रही है, अब हमें परेशानी हो रही है? तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे यूजुअली लोग रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्ट्रेस। सबसे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है जो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो अपने दोस्तों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हम इनफैक्ट अपने खुद के अंदर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, हम परेशान रहेंगे, हमारे अंदर मूड चेंजेस आएंगे, मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, सिबलिंग से लड़ाई हो गई तो ग्रम्पी हो गए, इरिटेटेड हो गए, बहुत छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ रहा है, हमसे कोई बात कर रहा है और हमको चिड़न हो रही है, हमको लग रहा है कोई बात ना करे, बस खामोश बैठा रहे, हमको अकेला छोड़ दो, हम अकेला रहेंगे, दोस्तों से कनेक्ट करने का मन नहीं कर रहा, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस कहीं खत्म हो गया, बहुत टायर्ड फील हो रहा है, लेथार्जिकनेस फील हो रही है, एक जगह पे कंटिन्यूसली बैठ ही नहीं पा रहे हैं। अब ये कुछ चीजें हैं, अगर ये आपके साथ हो रही हैं तो रियलाइज करना कि हाँ यार अब प्रॉब्लम है, नाउ वी नीड टू सीक हेल्प। सो हियर इन दिस डिस्कशन आई विल टेल यू अ बेसिक डूज एंड डोंट्स एज टू हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तो हम सबको है और हम अपने स्ट्रेस को ब्यूटीफुली मैनेज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें करना क्या है वो हमें देखना है। तो अब हमें डूज क्या है और डोंट्स क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब हमारा एग्जाम होता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम में क्या करते हैं? एग्जाम में अगर हम आंसर शीट में लिख के आएंगे हे भगवान मेरी मदद कर दे, और हम पढ़े ना, आंसर ना लिखे, तो ऑब्वियसली विल फेल यार। या अगर हम ये लिखे एग्जाम से पहले हे भगवान आई विल फेल एंड वोला यू फेल्ड, योर ड्रीम्स हैव कम ट्रू, यू हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट। या फिर एग्जाम से एक दिन पहले एनसीईआरटी हटा दिया और 10 कुंजियां खोल के बैठ गए, अगेन इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यू फेल। So imagine what exactly you need to do in case of stress. आपको करना क्या है? सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, मम्मी पापा कहते हैं ना कि सो लो, खाना खा लो, टाइम से खाओ, टाइम से सो, तो इसका मतलब क्या है? रूटीन मैनेजमेंट। तो हम फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत महंगा वाला फोन है, ये तो बेस्ट ऑफ एप्पल, बट अगर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे क्या होगा? मर जाएगा। तो विच मीन्स यू नीड टू चार्ज योर बैटरी, नंबर 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, एक साइट खोलोगे सिमिलर 10 साइट्स खुलेंगी, एक एक्सरसाइज का वीडियो मैंने खोला 50 एक्सरसाइज की वीडियोस खुलेंगे। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट यू इमोट इज व्हाट यू अट्रैक्ट। दीज आर द टेक होम पॉइंट। तो जब हम परेशान होते हैं, हमें अपनी बैटरी चार्ज करनी है, समय पे उठना, समय पे खाना, जो मेरे ख्याल से शालिनी मैम विल टेक अप ब्यूटीफुली। सेकंड इज थॉट्स एंड इमोशंस। when you are anxious, when you are upset, when you are sad, हम क्या करते हैं? मैंने जैसे अभी डिस्कस किया, यूजुअली हम ये करते हैं, which is like moving away from your values, but we need to move towards our values. What are our values? We need to be kind, we need to be compassionate, we need to be considerate. So when under stress, how do we move towards these values? How do we not get angry? How do we not get depressed? Recently I had a case of a young boy who was brilliant at school, everything was fine, and during this lockdown, his gadget usage has increased to like 15 hours. He's not sleeping, he's not eating, and he's suicidal. So parents are concerned. So what do we do to avoid ourselves from this? Remember Avengers? Avengers हम सब देखी है। Avengers में थैनोस ने एक चुटकी बजाई और पूरी दुनिया गायब।
So this is what has happened during lockdown. एक चुटकी बजी और हम सब लोग लॉकडाउन में. So even Thor, remember Thor? वो उसकी टोन निकल आई थी. He was drinking alcohol. Story Stark, remember? He was depressed. So even super Avengers can be depressed obviously, we are humans. So let's take example for that. हमें करना क्या है? Go out. घर पे छत है, छत पे जाओ. उसी का स्टॉल. घर के बाहर का थोड़ी सी जगह है. Move out. Speak to your family. Speak to your friends. Stay connected with people around you. पानी पीना है, खूब ढेर सारा पानी पीना है, खूब ढेर सारा एंजॉय करना है. घर वाले जितना घर के अंदर जो मस्ती कर सकते हैं, जो हॉबीज हम परस्यू कर सकते हैं उसको परस्यू करो. जो आपको लगता था यार टाइम ही नहीं है गिटार सीखने का या लैंग्वेज सीखने का, वो सीखो. क्रिएट समथिंग न्यू, बी क्रिएटिव, बी आर्टिस्टिक. जो क्राफ्ट कर सकते क्राफ्ट करो. जब स्ट्रेस में हो ना बहुत ज्यादा, टेक अ डीप ब्रेथ. डीप ब्रेथ का फायदा क्या होता है? डीप ब्रेथ का एक सिंपल साइंटिफिक लॉजिक क्या होता है, जब स्ट्रेस में होता है ना कॉर्टिसोल आता है ब्रेन में. कॉर्टिसोल इज वेरी गुड हार्मोन. ओके, आप एक केमिकल बोल लो, बट एक्सेस इज बैड. जैसे अभी एक्सेसिव टाइम हो गया ना हैंड्स में, तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ स्पेंड करें, तो एंजाइटी हो रही है. वैसे एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल इज बैड. एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल मींस रैशनल डिसीजन हम नहीं ले पाते, हम लॉजिकल थिंकिंग में इंडल्ज नहीं हो पाते. तो कॉर्टिसोल को कम कैसे करना है? डीप ब्रीथिंग. कॉर्टिसोल कम होगा, ऑब्वियसली यू विल थिंक बेटर. फाइंड डिस्ट्रैक्शन. जो डिस्ट्रैक्शन आपको बेस्ट काम करता है उसको काम करो, उसको यूज करो जब आप परेशान हो. एंड स्टे फोकस्ड, स्टे इन द प्रेजेंट. आज के बारे में सोचना है, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, स्कूल का क्या होगा, नौकरी को क्या होगा, और all these negative questions. Just stay in the present. Listen to music. Music is very calming, it's very soothing. If you have pets at home, pets are super therapeutic. The most underrated antidepressant are pets. हक करना, प्यार करना, मोहब्बत करना घर वालों के साथ, पेट्स के साथ, इज अगेन मेरा थेरेपी. यू विल फील गुड. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइट अबाउट हाउ यू फील. जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि यार ये नेगेटिव इमोशन है, आई एम फीलिंग स्कैर्ड, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग अपसेट, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो. जैसे डॉक्टर के पास सबसे पहले डॉक्टर शाजिया आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा हिंदी में ही बोलें. ठीक है मैम. ओके, थैंक यू. ओके. तो जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, आप अगर लिख लो अपनी फीलिंग्स ना कि मैं परेशान हूँ, मैं एंग्शियस हूँ, मैं डरी हुई हूँ, तो आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हो. क्यों? क्योंकि आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है. आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको डायग्नोस नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? तो जब आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो आप उसको बेहतर तरीके से इलाज भी कर पाते हो. अब आप आइडेंटिफाई आपने कर लिया, आपको लग रहा है मुझे डर लग रहा है, मैं परेशान हूँ, सबसे पहले अपने किसी बड़े से डिस्कस करो, बड़े क्या कह रहे हैं. ठीक है, 4 A's आपको याद रखने हैं. 4 A's. एक स्ट्रेस जर्नल बनाओगे, एक डायरी बनाओगे. 4 A's का में क्या आएगा? अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट एंड अडैप्ट. जो चीजें आप अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड कर दो. ये याद रखना है, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती है. मेंटल पीस इज मोर इम्पोर्टेंट. जो चीजें आप ऑल्टर कर सकते हो अपने रूटीन में, अपनी सोच में, उसको ऑल्टर कर लो. जैसे कपड़े जब हमने पहने तो ना अंडर साइज अच्छे लगेंगे ना तो ओवर साइज अच्छे लगते हैं, तो हम उसको ऑल्टर करते हैं ना. वैसे अपनी सोच को ऑल्टर करना है, ऐसे ऑल्टर करना है कि उनको सूट करे. जो चीजें आप बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट कर लो, जैसे तुमने लॉकडाउन को एक्सेप्ट कर लिया, और उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लो. जैसे शुरू में मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है. यहाँ से भी न्यूज आ रही है, वहां से भी न्यूज आ रही है, ये मर गए, वो मर गए. मत देखो न्यूज, मत देखो न्यूज चैनल. जो ऑथेंटिक साइट्स हैं, यूनिसेफ, WHO, मेयो क्लिनिक, उनकी इंफॉर्मेशन को आपको सीख करना है. ठीक है, उसके बाद अब आपको लग रहा है कि हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है, मैं काम कैसे रहूं, तो आपको क्या करना है? इमरजेंसी केयर वॉल. जिसका मतलब यू, आप जैसे हमें पता होता है ना कि घर में चाबी कहाँ है, हमारा ब्रश कहाँ है, हमारे कपड़े कहाँ है. तो जब आप अपने इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज कर लेते हो, प्रिडिक्टेबल बना लेते हो, तो क्या होता है? चीजें बेहतर हो जाती है ना. तो आपका फोन आपके पास है, ओवर यूज नहीं करना है. टेक्नोलॉजी का मास्टर बनना है, उसका स्लेव नहीं बनना है. टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ हो सकता है, आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो. आपको खुश रहना है तो प्रोडक्टिव फील करना जरूरी है. प्रोडक्टिव फील हम पहले करते थे, पहले हम सारे काम करते थे, तो कई ऐसे काम में तो कट हो गए, लेकिन घर पे रहने के बावजूद भी आप प्रोडक्टिव कैसे फील कर सकते हो, क्या नया कर सकते हो, कैसे अपनी इमरजेंसी केयर वॉल यूज कर सकते हो, उसको इस्तेमाल करें. जैसे आपने कहा, जब मैं परेशान होंगी मैं अपनी फेवरेट पिक्चर देख लूंगी, ये मेरी फेवरेट मूवी है. जब मैं लोनली फील करूंगा या करूंगी तो मेरी दोस्त है, मैं उससे बात करूंगी. जब मुझे सेल्फ डाउट होंगे
यार मैं पता नहीं क्या होगा भविष्य में, पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूंगी। तो जो इंसान आपसे ज्यादा प्यार करता है, आपको नॉन जजमेंटली देखता है, आप उससे बात करो। गुस्सा आ रहा है, म्यूजिक लगा ली, मैं अभी अभी मुझसे बात मत करो, लेट मी लिसन टू सम म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनूंगा, अपना काम करूंगा, उसके बाद मैं हैंडल करूंगा। आप बहुत परेशान हो रहे हो, गिव योरसेल्फ अ टाइट हग, अपने को जोर से पकड़ लेना है, या कंबल ओढ़ लेना है, या आपके पास बियर है, आपके पास पेट्स है, जैसे मैंने पहले कहा, उससे आपको बहुत काम महसूस होगा। क्यों काम महसूस होगा? क्योंकि कॉर्टिसोल नीचे आएगा, कॉर्टिसोल लेवल में आ जाएगा, तो आप बेहतर तरीके से फील कर पाओगे। देन जैसे आपने कहा कि ये प्रोडक्टिव फील करना है, घर में बहुत सारे काम है, हेल्प योर मदर, अपने घर वालों की हेल्प करिए, घर के छोटे मोटे काम में हेल्प करिए। तो ये जो रिसर्च कहती है, इससे सेरोटोनिन रिलीज होता है ब्रेन में। सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, तो जब रिलीज होता है जब हम अपने बियॉन्ड सोचते हैं, जैसे कि जब भी कहते हैं ना हर रिलीजन में चैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए रोल है। तो आपने कहा मैं आज मम्मी की हेल्प करूंगी, आज मम्मी का मैं छोटा सा काम करूंगी, तो उससे आपको बेहतर फील होगा, विल फील गुड अबाउट इट। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें, और डोंट नेगेटिव थॉट आए तो सबसे पहले डीप ब्रीथिंग, सोल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेशन, कि मुझे सोल्यूशन को कैसे देखना है, उसके अंदर मत नहीं रही, नहीं उसके बार बार उसके बारे में डिस्कस करना, लोगों से डिस्कस करना, वो नहीं करना है। ओके, और जब ये सब हो जाए तो आपको याद है जब आप परेशान होते हो क्या होता है, एक भंवर में हम फंस जाते हैं, इमोशनल भंवर, सिर्फ वो नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल फीलिंग्स, नेगेटिव थिंकिंग आती है। उस वक्त जैसे मैंने कहा, सिट डाउन, 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 इंद्रियां, उन इंद्रियों पे फोकस करो, उससे हमारे प्रॉब्लम कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ हम उस इमोशनल भंवर से बाहर आ जाएंगे। तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे पास और क्या क्या माध्यम है, हमारे पास और क्या क्या रिसोर्सेज हैं उस स्ट्रेस से डील करने के लिए। तो भंवर से बाहर आना मेन मकसद है, अपने आप को सेफ फील करना मेन मकसद है, जिसमें कि डीप ब्रीथिंग आपकी हेल्प करेगा। आपको 5 आपने कहा कि मैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा स्ट्रेस में आपने क्या खाया समझ में नहीं आता, ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग ये होता है, नींद नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, काम, आंखों से देखो क्या दिखाई दे रहा है, सुनो क्या सुन रहे हो, महसूस करो। अच्छा, तो जब ये 5 इंद्रियां आपकी मदद करेंगी आपको सिचुएशन को हैंडल करने में, तो बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। एंड फॉर पेरेंट्स वन थिंग, जस्ट वन, एक लाइन पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करना है, निगोशिएट करना है। अपनी निगोशिएटरी स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ये वक्त एक पावर स्ट्रगल का नहीं है, तेरी जीत मेरी जीत। इस वक्त ये है कि बच्चों के साथ निगोशिएट कैसे करना है, उनसे काम कैसे करवाना है, उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है, ये आपको सीखना है। तो जब आप ये सीख जाएंगे, घर में जो बेसिक लड़ाइयां हैं ना वो खत्म हो जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, उस पर यकीन करना कि भगवान है, ऊपर वाला है, जो होगा मैनेज कर लेंगे, एंड आई कैन हैंडल माई सेल्फ। सो विद दिस आई एंड द प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शाजिया। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सारी बातें बताई और बहुत सरल भाषा में सब बच्चों को, और अभिभावक भी हैं उनके साथ पेरेंट्स भी हैं जो सुन रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ बच्चों के सवाल हमारे चैट बॉक्स में आ रहे हैं, और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये दोनों प्रेजेंटेशंस के बाद हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आपके सवाल लेंगे और आपको संतुष्ट करेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर शालिनी भसीन जी से कि आप भी बच्चों को कुछ बच्चों से और उनके अभिभावकों से कुछ बातचीत करें, उनको बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों का क्या रेलेवेंस है और दोनों के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। डॉक्टर शालिनी। One second, I'll just see my. That time it was coming, I think. Give me a minute. जब तक शालिनी जी अपना प्रेजेंटेशन ठीक कर रही है, मैं चाहती हूँ डॉक्टर शाजिया, ये एक अयान रिजवी जी का सवाल है, इसको अगर आप आंसर करते हैं। मैम बताइए। हाँ, ये कह रहे हैं कि गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज अयान रिजवी एंड आई एम रियली एंग्शियस अबाउट माय बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, बट इवन देन आई एम नॉट एबल टू स्टडी। इट्स जस्ट दैट कि मन नहीं करता पढ़ने के लिए।
and I would be obliged if you would provide me a solution. Exam को लेके बहुत stress है इनको. तो अयान, हेलो, एंड मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे अपने एग्जाम्स को लेके परेशान हैं. एक काम करना है, दिन का 1 घंटा को भी फिक्स कर लो सोने के वक्त में. ये नहीं कि नींद से पहले. आज आपने कहा 11 से 12, इसको वरी टाइम कहते हैं, परेशान होने का वक्त. ओके, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अगर परेशान होना है ना, मुझे इस एक डेजिग्नेटेड 1 घंटे में परेशान, जितने नेगेटिव थॉट लाऊंगा मैं इसी 1 घंटे में लाऊंगा. अब ऐसा होगा तो है नहीं कि नेगेटिव थॉट उसी 1 घंटे में है, लेकिन उसके अलावा जब कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, अपने आपको बोल रहा है अभी नहीं, उस 1 घंटे में सोचूंगा, अभी तो मैं काम कर लेता हूँ अपना. तो आप ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं सोचूंगा, बिकॉज ये हम सब जानते हैं कि जिस चीज को हम रोकते हैं वो चीज उतनी ही स्पीड से आती है. तो रोकना नहीं है नेगेटिव थॉट्स को, अपने आप से बोल रहे हैं अभी नहीं, बाद में आना. वो बाद में नहीं आएगा, लेकिन यस, हमारा मेन मकसद क्या है कि अपने अंदर एक सेंस ऑफ Sangeeta, I'm not able to. अपने अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल लेकर के आना. ओके, दूसरी बात मैंने क्या बताई, जो होगा वो हम सबके साथ होगा, सब बच्चों के साथ होगा. तो किसी भी प्रॉब्लमैटिक सोल्यूशन को, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन पे ध्यान देना है. बोर्ड एग्जाम है, अगले साल है 24, या आई थिंक मैम का आई जस्ट एंड इट मैम. सोल्यूशन पे कंसंट्रेट करना है अयान. दिन भर मत पढ़ो, सिर्फ दिन का 1 घंटा पढ़ो, दैट्स इट. अगले साल है, दिन का 1 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करो, बिकॉज आप 1 घंटा पढ़ो लेकिन वो क्वालिटी पढ़ो. उसके साथ साथ बाकी वो सब चीजें करो जो शालिनी मैम अभी आपको बताने वाली है. तो कॉन्सेंट्रेट ऑन द सोल्यूशन, डोंट रिस्पॉन्ड कंपल्सिवली. रिस्पॉन्ड नहीं करना है वरी के साथ, रिस्पॉन्ड करना है सोल्यूशन के साथ. थैंक यू. Thank you, Dr. Shazia. Dr. Shalini, request you to begin. Give me a minute. I am just trying. I think I have the same problem which Shazia had. Okay, can you see me? Yes, and Yeah, your yeah. presentation is also seen. Is open? Visible. Okay, Yes, yeah. yeah. I think that's fine now. No, okay. Thank you. Sorry for the inconvenience. No problem. I'm running I think your that's presentation. technology glitches. Yeah. Press next. I'll do it. Good evening, everybody. डॉक्टर शाजिया से हम लोगों ने अभी सुना कि किस तरह से हम इन डिफिकल्ट टाइम्स में अपनी को मैनेज कर सकते हैं. और डेफिनेटली ये साल 2020 तो हिस्ट्री बुक्स में लिखा ही जाएगा. मतलब, but the thing is that do we want to be remembered as a generation of people who fought bravely and courageously, or do we all want us to be remembered as people who just simply gave up? What do we want? The choice is ours, and this will much depend on how well we are prepared to face it. कोई भी जंग में कैसे होता हार या जीत, हम अगर तैयार हैं तो तैयार हैं, हम उसको झेल लेंगे. So let us see now how. डॉक्टर शालिनी, आपकी ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि मैं इसको हिंदी में भी थोड़ा बता दूं कि जी, जी, जी. 2020 का साल हमेशा आने वाले दिनों में हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन इसकी यादगार हम कैसे इसे बनाना चाहेंगे, ये सोचकर कि हम हार गए, मायूस हो गए, गिव अप कर दिया हमने, या फिर हमने इसका बहादुरी से सामना किया और इस जंग में हम जीते. ये डॉक्टर शालिनी की शुरुआत थी और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात आपने कही है. डॉक्टर शालिनी, प्लीज आगे अपनी बात हिंदी में बताएं. तो इससे हमें यही देखना है कि नेक्स्ट स्लाइड कैसे होगी, हो नहीं रही है. हाँ, ठीक. सो लेट अस सी हाउ हमारा यूथ जो है वो अपने को कैसे तैयार कर ले. क्या क्या चीजें हमारे पास, जैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, हम बंदूक भी रखते हैं और बहुत सी हैंड ग्रेनेड भी रखते हैं कोई भी युद्ध के लिए. उस तरह से कई चीजें हमें मैनेज करने सीखना पड़ेगा, जैसे कि हेल्थ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप को मैनेज करना, और जैसे डॉक्टर शाजिया ने बताया अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करना. ये हमें आना पड़ेगा. नेक्स्ट करें. सो हेल्थ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशियस फूड मिलना.
तो जिस एक टीनेजर को अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है. So if the youth can eat a diet which is rich in whole grains, fruits, vegetables, some dairy products, beans, nuts, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे, मीट, मछली, ये सब ले सकते हैं. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है. इस पे जितना भी एम्फेसिस दिया जाए कम है. तो इस तरह से अगर हम हेल्दी खाना खाएं और एक राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लें तो हमारी हेल्थ इंप्रूव करेगी और हमारे अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी. नेक्स्ट. इसके अलावा एडिक्वेट एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एडिक्वेट एक्सरसाइज का हमारा मतलब है कि जिस तरह से भी आज के जमाने में, आज के समय में हम एक्सरसाइज कर सकें, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है उससे ना कि हमारे शरीर बल्कि हमारे दिमाग पे भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट आता है. हमारे शरीर में तो हमारी बोन और मसल स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता ही बढ़ाता है, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस को भी बढ़ाता है. लेकिन इसके अलावा डूइंग एक्सरसाइज इज लॉट ऑफ फन, है ना. और अकेले करना जरूरी नहीं है, हम अपने घर में अपने परिवारजन के साथ कर सकते हैं. और एक्सरसाइज करने से रिस्क ऑफ डिप्रेशन भी कम हो जाता है और हमारी कॉग्निटिव डिक्लाइन भी काफी रिड्यूस हो जाती है. सो ये सब चीजें हमें मोटिवेट करेंगी. क्या कर सकते हैं लेकिन, क्योंकि बाहर जाना, तो अगर आपको बाहर जाना पॉसिबल है तो आप वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, अपने कुत्ते को टहलाने ही जा सकते हैं, फिर बागबानी कर सकते हैं, इसमें भी काफी एक्सरसाइज हो जाती है. और अगर आपके वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप बाहर जा सकें तो आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. भाई रस्सी कूद लें, डांस कर लें म्यूजिक लगा करके, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर लें, योगा कर लें, इवन मसल ट्रेनिंग कर सकते हैं. बल्कि हम तो कहेंगे कि घर के काम, क्योंकि आजकल वर्कर्स भी नहीं आ रहे हैं, घर के काम करने में भी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, वो भी कर सकते हैं. एक्सरसाइज इन सब तरह से करके हमारा शरीर और स्ट्रांग होगा. एक्सरसाइज के अलावा टेकिंग एडिक्वेट स्लीप, इफ यू कैन टर्न इट, टेकिंग एडिक्वेट स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये नींद हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नींद से हमारे बॉडी रिकवर. नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए नवीन जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. अच्छी नींद होने से हमारी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है अगले दिन को और अगले आने वाले समय को झेलने के लिए. तो नींद के लिए क्या करा जा सकता है? देखें आप, जैसे कि स्लाइड पे देख रहे होंगे, 5 जो अच्छे तरीके माने गए हैं वो है कि आप समय पे, सेम टाइम पे रोज उठिए. ये नहीं कि रात को हमने 4 बजे तक जगे रहे और इसलिए अब आज तो हम भाई 12 बजे तक सो के उठेंगे. दिस इज जस्ट नॉट डन. ठीक है. फिर गेट 15 to 30 minutes of sunlight each morning. Do relaxing activities before bedtime. बेडरूम में टीवी नहीं देखें भाई, बेडरूम को आप सिर्फ नींद के लिए इस्तेमाल करें. और अगर आप शादीशुदा हैं तो मे बी सेक्स ऑल्सो. बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि रात को सोने से पहले आप स्क्रीन लाइट को अवॉइड करिए. स्क्रीन लाइट मतलब मोबाइल की लाइट, लैपटॉप की लाइट, टीवी की लाइट, ये सब चीजें सोने से 2-3 घंटा पहले बंद हो जाना चाहिए. पर होता क्या है, हम लोग अक्सर रात को लेट कर सोते समय व्हाट्सएप देखते हैं या ऑनलाइन जाते हैं और फिर पता नहीं चलता समय कैसे बीत गया और बढ़ता चला जाता है. बच्चे अगर पबजी खेलना शुरू किया तो वो भी चलता रहेगा. तो ये सब चीजें अवॉइड होनी चाहिए. और सोने से पहले बहुत जरूरी है कि हम कॉफी और अल्कोहल का सेवन ना करें. देखा गया है कि आजकल बच्चे सपोजिंग लेट नाइट तक ऑनलाइन रहे और फिर वो वापस एक चले जाए, लेट नाइट तक रात ऑनलाइन रहे और देर से सोए, सुबह मम्मी ने उठा दिया कि भाई उठो टाइम हो गया है. अब हुआ क्या, एक स्लीप डेप्रिवेशन हो गया. और ये स्लीप डेप्रिवेशन जो है ये आपका, ना कि आपका मूड बल्कि आपकी आगे दिन को जीने की क्षमता को भी कम कर देता है. तो आपके मूड और माइंड और मेमोरी, इन सब चीजों को हैम्पर करता है. तो हेल्थ में हमने देखा न्यूट्रिशन अच्छी, एक्सरसाइज, स्लीप. और
कोई भी हमारी जो मेडिकल इश्यूज हैं उनको भी हमें देखना चाहिए, उनकी अगर कोई दवाई हमारी चल रही है उसको रेगुलरली लेना चाहिए, कोई वैक्सीनेशन अगर मिस हो गए हैं उनको भी लेना चाहिए, एंड अवॉइड ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल। ये हमें इन सब चीजों की जरूरत है करने की। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट पॉसिबल टू, हाँ थैंक यू। सो टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अभी डॉक्टर शाजिया ने भी बताया थोड़ा सा, कि हमें एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। हम तो कहेंगे एक फ्रेमवर्क फॉर द डे बना लीजिए, ठीक है, और एक टाइम टेबल जैसे स्कूल में होता है ना वैसे बना लीजिए, और जैसे नॉर्मली हम लोग करते थे सब कुछ दिन में, वैसे ही दिनचर्या हम अपनी रखें कि सुबह उठे इतने बजे, नहाए, शेव करनी है शेव करी, तैयार हुए, नाश्ता किया, पढ़ने बैठ गए। काम वाले लोग हैं तो वो अपने काम पे बैठ गए। तो इस तरह का दिनचर्या हम डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं और हम वीक प्लान भी बना सकते हैं। जब हम ये दिनचर्या बनाते हैं तो ये ध्यान रखें कि कितने घंटे काम करना है, उसको जरूर ध्यान में रखें। ये नहीं कि अब जब प्लान कर रहे हैं तो 12-15 घंटे डाल दिए उसमें, नहीं, दैट्स नॉट नीडेड। लेट्स बी प्रैक्टिकल, यू नो। और इसको लेते समय शॉर्ट ब्रेक्स भी बनाएं इस टाइम टेबल में। फिर अगर हमारी जरूरत है तो 20-30 मिनट का नैप का पीरियड भी उसमें दे दें। बीच में जब हम ब्रेक्स ले रहे हैं तो ये नोट करिए कि इन ऑर्डर टू स्विच ऑफ, ये जरूरी है कि हम वही उसी तरह की एक्टिविटी नहीं करते रहें, बल्कि कंप्लीटली डिफरेंट एक्टिविटी करें, जैसे कि कुकिंग, हाउस होल्ड चोर्स, म्यूजिक, ऐसे कुछ ना कुछ करें। तो मतलब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज तैयार होनी चाहिए कि हम जब फ्री हुए अब हम ये करेंगे। ये नहीं कि अब हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक लिस्ट बननी चाहिए और वो आपके पास हैंडी होनी चाहिए। और ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो आप रख रहे हो, इसमें कुछ चीजें आप अकेले करें और कुछ चीजें आप अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको साथ लेके चलें। तो इसमें मजा भी आएगा और टाइम भी अच्छा निकलेगा, बोर भी नहीं होंगे। सो जो चीजें हम करने में इंजॉय करते हैं ना, उन चीजों को हमेशा प्रायोरिटी दें और इस रूटीन में कुछ नया करने की कोशिश करें। थोड़ा सा एक टाइम नई लर्निंग, जैसे कि अक्सर लोग कह रहे हैं, आजकल हम सुन रहे हैं, भाई मेरा बहुत समय से गिटार सीखने का, कोई कहेगा मुझे ओरिगेमी सीखने का, मुझे पोर पेंटिंग सीखने का, ये सब मन कर रहा था। तो वो मैंने अब ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको ज्वाइन करा, और ये चीज जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था, अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसको कर दिया। सो इट विल गिव यू सच अ पेप अप, यू नो, यू विल बी सो हैप्पी, इट विल गिव यू सच अ हैप्पी फीलिंग। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट में है सेटिंग गोल्स। तो जब हम गोल्स बनाते हैं और उनको अचीव करते हैं, तो दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कंट्रोल एंड पर्पस। सो वी मस्ट डू दिस। वी शुड कीप आवर माइंड एक्टिव। कैसे? रीडिंग, राइटिंग, गेम्स खेलें, जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई है, चेस, लूडो, स्पेल बाउंड, ये सब करें, कीप एक्टिव रहें। टेक टाइम टू रिलैक्स। और अगर आप आपको एंजाइटी हो रही है तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज करिए और रिलैक्स करिए। गो आउट आई मीन दिन में एक बार अपनी चार दीवारी से बाहर निकलिए, नेचर के साथ मिलिए, नेचर देखिए। अगर आपके पास लॉन है, लॉन में जाइए, छत है, छत पर जाइए। मतलब इसके लिए तो आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो ही रही है ना, बिकॉज आजकल हम ऐसे नहीं निकल सकते हैं कि लॉन गार्डन में चले गए, सब लोग खेल रहे हैं, खो खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं। तो ये सब ध्यान रखते हुए बाहर निकलिए। समझिए आपके घर में जगह ही नहीं है, आप निकल नहीं सकते हैं, खिड़की खोल दीजिए। जब आप खिड़की खोलिए, लेट नेचर कम इन, ओपन योर डोर्स एंड विंडोज, लेट सनलाइट कम इन। So this connect with nature is very wonderful for our mental and physical well-being. Next management जो हमें सीखना है वो है managing relationships. Next कर दीजिए please. So managing relationships, it is seen that our connection to people and good mental health are intrinsically linked. But इस समय पे connection to people और mental health दोनों ही risk पे हैं, तो इसलिए हमें कुछ तो करना होगा। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्ट्रेंथन आवर फैमिली बॉन्ड्स। कैसे? कुछ समय रखें जो हम अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी रूटीन में बिता सकते हैं। कुछ खेल खेलें, प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, रीडिंग करें,
कुछ बनाएं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत बच्चे, बहुत गर्ल्स, इवन मेन, बॉयज कुछ ना कुछ कुकिंग कर रहे हैं। तो कुकिंग करें, डांसिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग, कुछ भी करें। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक दूसरे को गुदगुदी करें, हंसें। आई मीन द बेसिक आइडिया इज टू कनेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इससे हमारा बॉन्ड बढ़ेगा। इकट्ठे करने के अलावा आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस समय पे हम ईच फैमिली मेंबर के लिए कम से कम 20 मिनट का टाइम रखें जो हम उनसे 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकें। नॉर्मल लाइफ में हमारे पास टाइम नहीं होता, तो अभी हमारे पास टाइम है और इस बॉन्डिंग को हम और मजबूत कर सकते हैं। फैमिली बॉन्ड के अलावा इंटरैक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली दोज हु यू हैव नॉट मेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कैसे वीडियो कॉल कर लें, वर्चुअल बर्थडे पार्टी कर लें। अभी रिसेंटली हमारे अंकल का 70th एनिवर्सरी थी एंड इट वाज लाइक वाओ, old people, and puri family from all over the world got together and we had a party, cake cutting, singing songs, playing housey. I mean it was so fun, so much fun. हमारे ख्याल से हमने कभी रियल लाइफ पार्टी में इतना मजा नहीं किया होगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं बर्थडे के लिए वेट करो, एक दिन बना लो भाई, इस संडे को हम सारे लोग, एक तरफ की फैमिली दूसरी तरफ की फैमिली इकट्ठे होती है, कहीं जाना भी नहीं और घर बैठे बैठे वर्चुअल पार्टी हो गई। देन हेल्प एंड सपोर्ट अदर्स। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उनको तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इट मेक्स अस फील बेटर। हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है, हम अपने को एक कोविड हीरो की तरह महसूस करते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ चेंज हीरो। डू इट। इस मौके का फायदा उठा करके, इस लॉकडाउन का फायदा उठा करके हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को भी जानें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डील करेंगे अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करना। नेक्स्ट नवीन जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। So managing our thoughts and emotions, Dr. Shazia has just talked a lot about that. So I will not go into much detail as to how to do it. लेकिन ये important है कि हमें क्यों अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करना है, क्या जरूरत है। इसका एम ये है कि हम अपनी मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग के लिए हमें इनको मैनेज करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा हम बिहेव करते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल है, थॉट, इमोशन, बिहेवियर, थॉट, इमोशन, बिहेवियर। तो अपने थॉट और इमोशंस को हमें मैनेज करना आना चाहिए। डॉक्टर शाजिया ने बहुत सी टेक्निक्स बताई हैं आपको, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि इसको करना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ ये डिटरमिन करता है कि हाउ लाइफ अफेक्ट्स अस and how we cope up with it, how we engage with others and the choices we make. All these things are determined by our mental health. So isme we have to be, when we are managing it, we have to be aware of our emotions and reactions. क्या चीज है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, और जैसे बात हुई कि 4A, अवॉइड, एक्सेप्ट, अडेप्ट, ये सब करने की कोशिश करें। फिर एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन अप्रोप्रिएट वेज। अगर आपको कुछ बॉदर कर रहा है तो उसको आप एक्सप्रेस करिए, ये नहीं कि रोने लगे और चिल्लाने लगे और गुस्सा करने लगे। उसको प्रॉपर मेथड से एक्सप्रेस करिए। जो आपका कोई क्लोज है, उन लोगों को, आपके हमदर्द लोग हैं, उनसे एक्सप्रेस करिए हम इस चीज के बारे में बहुत चिंतित हैं। अपने अंदर रखना से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अगर हम अपने अंदर रखेंगे उन चीजों को तो हमें स्ट्रेस पैदा होगा। अब टॉक अबाउट योर वरीज, मैनेज स्ट्रेस, देन फाइंड पर्पस एंड मीनिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ये जानना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी पर फोकस करिए। देखिए कितने अलग अलग तरह के लोग होते हैं, हर जने के लिए अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए वर्क इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उस पर अपना टाइम स्पेंड करिए एंड डू व्हाट इज मीनिंगफुल फॉर यू। स्टे पॉजिटिव एंड ऐसे लोगों के साथ मिलिए और रहिए जो कि हेल्दी और पॉजिटिव लोग हैं। अवॉइड मीडिया ओवरलोड। अभी पहले बात हुई है कि मीडिया ओवरलोड से बचें, बल्कि हम कहेंगे दिन में
थोड़ा सा समय ही रखिए, जब आपको देखना है कुछ तो मीडिया से हर समय न्यूज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, न्यूज़पेपर्स, टीवी, एवरीथिंग इज टेलिंग यू ऑल द नेगेटिव थिंग्स, और उससे आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। सो मीडिया ओवरलोड से इससे बचिए और लिमिटेड टाइम के लिए एक्सपोजर दीजिए अपने को मीडिया का। गेट फैक्ट्स, जब हमें किसी चीज के फैक्ट्स पता होती हैं तो हमारा डर कम हो जाता है। लेकिन जैसे पहले मेंशन हुआ है, ये प्रॉपर सोर्सेज से हो। WHO एंड यूनिसेफ की साइट्स हैं, वहां से देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट्स हैं, उनसे देख सकते हैं। ICMR की वेबसाइट्स हैं, उनसे देख सकते हैं। इनमें हमें सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। और फालतू के व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये हो गया, यहाँ ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इनको प्लीज मत बढ़ाइए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज नो फैक्ट्स फ्रॉम मिथ्स। कई गलत फहमियां हैं, उनको इन्हीं सोर्सेज पे जाकर के रेक्टिफाई करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से इज कि हम देखते हैं कि क्या कितने केसेस हो गए। नॉर्मली देखिए आप क्या बात करते हैं, लखनऊ में कितने केस हो गए, इंडिया में कितने केस हो गए, यूपी में कितने केस हो गए। We focus on number of cases. We focus on deaths. We never focus on the stories of recovery. कभी कोई नहीं देखता। हमें अपना नैरेटिव को शिफ्ट करना है। Let's take आज का एग्जाम्पल। Today we have in India more than 1.5 lakh cases. Frightening. We have 4,500 deaths. ठीक है, but what is the recovery rate? आप सब अपने को पूछिए। Anybody is aware कितने पेशेंट्स रिकवर हो गए? उस 1.5 लाख में से 65,000 people have recovered. Don't you feel happy? अब न्यूज सुनने में क्योंकि आपका फोकस बदल गया, आप डिप्रेस होने के लिए यू आर फीलिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंट। अरे 65,000 लोग रिकवर भी हो गए आज तक, सो नाइस। सो रिमेंबर दैट दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स एंड दीज टाइम्स आर गोइंग टू स्टे फॉर श्योर। अभी जाने वाली नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, फियर एंड एंजाइटी बल्कि हम कहेंगे और बढ़ेगा। तो डरना नहीं है, ब्रेवली डिनाइल में नहीं रहना है, ब्रेवली फेस करना, बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड। सो एज अ सोसाइटी वी मस्ट वर्क टुगेदर विद अ सेंस ऑफ एम्पैथी। और एज इंडिविजुअल हमें क्या करना है, हमें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का केयर करना है, इन्फॉर्म आवरसेल्व्स ऑफ फैक्ट्स, स्टे कनेक्टेड टू पीपल वी लव एंड बी काइंड टू ईच अदर। So I would end by saying that youth must ensure that you and your family stay safe, healthy, and happy. Thank you. Thank you, Dr. Shalini. That was a very nice presentation. That was a very nice presentation. अब मैं चाहूंगी, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे चैट पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. If there are any people raising their hands, you can be given a chance to ask questions. अगर कोई अपना क्वेश्चन स्वयं पूछना चाहता है तो हाथ उठाएं. तो नवीन जी आप उनको अनम्यूट कर दीजिएगा. नहीं तो कुछ क्वेश्चंस ये चैट में आए हैं डॉक्टर शालिनी एंड स्क्रीन को नवीन जी स्क्रीन को अनशेयर कर दीजिए. अभी तो ये डॉक्टर शाजिया ये आपके लिए क्वेश्चन है. या हेलो मैम, एनी टिप्स? या मैम आप कहिए. हाँ, वो ये क्वेश्चन है, एनी टिप्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर? See, if you're already under treatment for anxiety disorder, be very careful about the kind of जो आप दवा खा रहे हैं ना. Be in आजकल जब डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट बैठ नहीं रहे तो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू मैनेज कर रहे हैं. तो ड्रग्स को वैसे ही लेना है जैसे आप लेते आए हैं, ठीक है. लेकिन जैसे मैंने भी स्ट्रेस किया, शालिनी मैम ने भी स्ट्रेस किया, एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन है. वो पैथोलॉजिकल तब होता है जब वो आपकी डेली लाइफ को हैम्पर करना शुरू कर दे. तो जहां आपको लग रहा है कि यार ये मेरा यहाँ पे मेरा डेली लाइफ अफेक्ट हो रहा है. एक फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना बनाते हैं, ओके, अगर कोई चीज कम होती है तो हम कंपल्सरीली उसमें नमक ही नहीं डाल देते हैं. नमक कम है तो नमक डालेंगे, मिर्च कम है तो मिर्च डालेंगे, हल्दी कम है तो हल्दी कम डालेंगे. लेकिन एंजाइटी में क्या होता है, हम हर मुसीबत को, हर परेशानी को एंजाइटी के थ्रू ही रिस्पॉन्ड करते हैं. एक सिंपल कंपल्सिव इमोशन है वरी. कोई प्रॉब्लम हुआ वरी, कोई प्रॉब्लम हुआ वरी. तो ये नहीं करना है, इसको आइडेंटिफाई करो.
जहां आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन तो मैं मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस तरीकों से, उसको जैसे मैंने कहा ना इमरजेंसी केयर वॉल पहले से प्रिवेंट करके रखो, अपने आप को इन कंट्रोल करो। यार ये सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए। जैसे हम हर एक को अपनी स्ट्रेंथ मालूम होती है, अपने लिमिटेशंस मालूम होते हैं। मुझे ये मालूम है कि इस प्रॉब्लम को तो मुझे आपका सोल्यूशन है, हाँ इस प्रॉब्लम का नहीं है। तो जहां का नहीं है वहां पे टेक हेल्प, और जहां है वहां पे एक्ट, प्रिडिक्टिवली एक्ट करो, एक्शन में लेकर के आओ, सिर्फ थॉट प्रोसेस से रिस्पॉन्ड मत करो। तो जहां आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं नहीं कर पाऊंगा, उसमें बड़ों की मदद लेनी है। और जहां आपको लगता है कि यार इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, उसको एंजाइटी से रिस्पॉन्ड मत करो। ओके, सो यू नो योर स्ट्रेंथ एंड नो योर लिमिटेशन। थैंक यू डॉक्टर शाजिया। ओके डॉक्टर शालिनी, जी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे घर के बुजुर्गों को कैसे समझाया जाए कि वो बहुत चिंतित हैं और कोरोना को लेकर के और लॉकडाउन को लेकर के, तो उन्हें मैं कैसे समझाऊं? या सो देखिए, घर के जो बुजुर्ग हैं, पहली तो बात, अगर हमें सबके अंदर, सिर्फ बुजुर्गों के नहीं, सबके अंदर एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड चेयरफुलनेस लानी है, तो वो कैसे आएगी? सब पार्टिसिपेशन करके। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, ये कहावत हमने सुनी हुई है। तो बिजी रखना है सबको, बहुत जरूरी है। फिर नॉलेज देना है, इंफॉर्मेशन देनी है कि यही चीज हमने कहा ना कि हम लोग नेगेटिव चीजों पे, नंबर ऑफ केसेस के ऊपर फोकस करते हैं। तो उनको बताएं, देखिए बाबा, इतने लोग 1.5 लाख में से 65,000 यानी कि 1/3 से भी ज्यादा लोग रिकवर हो गए हैं। तो जब ये पता चलेगा इतने लोग रिकवर हो रहे हैं, तो हमारी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। फिर दूसरी चीज ये बताएं कि हम लोग तो सब केयर ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर टेक्निक हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, फेस हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। इन सबका आई थिंक आप लोगों के पहले वाले वेबिनार में डिस्कस हुआ था। इफ यू वांट वी कैन टेल देम कि हाथ, कोई चीज छुएं, हाथ बाहर की चीजों से नहीं छुएं, बाहर कहीं जाएं, अगर इवन कहीं हम डॉक्टर को भी दिखाने गए हैं तो अपना हैंड हाइजीन और मास्क लगा के जाएं और हैंड हाइजीन करें। छींकना है तो बगल में छींकें। ये सब चीजें करके हम अपने को सेफ कर सकते हैं। भाई सेफ्टी कहाँ से आएगी? अगर हम, कोरोना अपने आप तो आएगा नहीं हमारे घर में, ये भी उनको समझाएं। कोई लेके आएगा, यानी कि हम ही लोग लेके आएंगे। तो अगर हम नहीं लेके आएंगे, ये सब एहतियात बरतेंगे, तो कोरोना हमारे घर आ ही नहीं रहा है, कहाँ से आएगा? ठीक है ना? तो ये इन दोनों चीजों के रिकवरी रेट एंड दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस व्हिच आर सपोज्ड टू बी टेकिंग। वी आर डूइंग सोशल डिस्टेंसिंग। अब ये नहीं कि लॉकडाउन खुल गया है, सब लोग मिलने जा रहे हैं एक दूसरे से, और इतने दिनों पे मिलेंगे जाएंगे तो दादाजी बाबा के बिस्तर पे भी बैठेंगे। हाँ, यहाँ एक चीज और हम बहुत जरूरी बोलेंगे। अब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, यंगस्टर्स आर मूविंग आउट, तो एक घर के अंदर भी, हमारे घर में अगर बुजुर्ग हैं तो घर के यंगस्टर्स को भी घर के बुजुर्गों के साथ मिक्सअप नहीं करना है। ये नहीं कि हम लोग तो एक ही घर में हैं, चलो भाई आपस में घुले मिले, नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग बुजुर्गों से भी करनी है, क्योंकि हो सकता है हमें कोविड हो, हम एसिम्टोमेटिक हों और हम घर लेके आए, और फिर हम बाबा दादी के साथ बैठे, खेला, बिस्तरे पे उनके लोटा पोटी करी और हमने उनको ट्रांसफर कर दिया। तो ये एहतियात तो देखो हमें करना है ना, तो ये करें। फिर उनसे हम बचपन की बातें, उनके बचपन की बातें, अपने पापा के बचपन की बातें, ये सब बातें डिस्कस करें, उनको एक लॉन्ग गॉन एरा में ले आए, जबकि वो खुश होके हमें वो सब वाकया सुनाएं। तो ये सब होने से जब हमारे मन में खुशी होगी ना, तो हमारे अंदर डर, खुशी और डर दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। प्यार और डर, खुशी और डर इकट्ठे नहीं रह सकते एक दिल में। तो अगर हम ऑपोजिट ले आएंगे तो डर होगा ही नहीं। I hope I'm clear. Thank you, Dr. Shalini. There is one more question for Dr. Shazia. Dr. Shazia, ये बच्चा पूछ रहा है कि how to overcome mental pressure on family members whose one person drinks at night regularly and does various bad activities. See, a lot of अच्छा, इसका हिंदी में भी थोड़ा ट्रांसलेट कर दूं ताकि और बच्चे भी इसको समझ पाएं कि इनका कहना है कि कोई परिवार में यदि एक ऐसा व्यक्ति है जो रोज रात को अधिक शराब पी रहे हैं और
गलत तरह की हरकतें करते हैं, तो उसकी वजह से जो एक तनाव बढ़ता है परिवार के सदस्यों पे, तो उसको हम कैसे ओवरकम करें, उसका सामना हम कैसे करें? देखो बच्चों, इस लॉकडाउन में ना, तो रिसर्च कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस, इमोशनल अब्यूज ये बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, अपने स्ट्रेस को निकालने का मौका नहीं मिल रहा, और बहुत से लोग मैल अडेप्टिव तरीके से अपनी स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं, जैसे शराब पीना। तो अगर आप छोटे हो, अगर आप टीनेजर हो, आपके पेरेंट ये इस तरह का कर रहे हैं, या घर में कोई बड़ा कर रहा है जिससे आपको कोई कंट्रोल नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अहम चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि स्टे सेफ, दूरी मेंटेन करो। जब दो शेर लड़ते हैं ना आपस में, या शेर खूंखारता है, तो बकरी के बच्चे बीच में नहीं कूदता है। कंज्यूमर और कंज्यूम्ड का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में। तो आपको ऐसी सिचुएशन में, आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो बीच में कूदो मत। जब इस तरह का हो रहा है, अपने आप को मेंटेन कर लो। अब आपको लगेगा मैं तो कुछ हेल्प ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी शायद आप बहुत छोटे हो उस चीज को हेल्प करने के लिए। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने आप का ख्याल रखना है। तो अगर आपको लगता है कि मैं विड्रॉ करके इस सिचुएशन से बच करके अपने आप को बचा सकता हूँ, तो करो। मान लो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और घर के बाकी मेंबर्स को यथी हो सकती है, हार्म पहुंच सकता है, तो ऐसे में हेल्प सीख करो। खानदान के जो बड़े लोग हो गए उनको अपने घर पे नहीं, मतलब समझा करके या उनको इन्वॉल्व करना है। और आजकल बहुत ढेर सारी हेल्पलाइंस है, फ्री की हेल्पलाइंस है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, वेलफेयर ऑफ विमेन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, जहाँ पे आप फ्रीली उनको एक्सेस कर सकते हो। डॉक्टर साहब, इनको हेल्पलाइन के नंबर्स भी बताएंगे क्या? हाँ, श्योर, मैं आपको नेशनल हेल्पलाइन का नंबर एक मिनट में दे देती हूँ। ये विमेन हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 182 है। हाँ, मैं आपको एक और भी दे रही हूँ, जस्ट एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये डॉक्टर साहब बता रही हैं आपको कि हेल्पलाइंस को कैसे एक्सेस करें, आपको कॉल करना है। और बेसिकली जैसे मैंने कहा, अगर आप छोटे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें प्रॉब्लम से जितना आप दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। ओके, बीच में सिचुएशन को मैं आपको संगीता मैम मैं आपको भेज देती हूँ। इन द टाइम आप उसके क्वेश्चंस आप टेकअप कर लो। मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, इसके बाद बता दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर शाजिया। डॉक्टर शालिनी, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न पढ़ाई के इर्द गिर्द है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बहुत सारा कोर्स छूट गया है, उसकी बहुत चिंता है कि अब जो छूटा हुआ कोर्स है वो पूरा कैसे होगा, कोप अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, पहले तो बहुत जरूरी है कि हम नेगेटिविटी में मत जाएं, क्योंकि द मोमेंट हम नेगेटिविटी में जाना शुरू किया हम नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते जाएंगे। पहले ये सोच के चलें कि इसको हम हल तो कर ही देंगे। हो सकता है अकेले ना सॉल्व कर सकें ये प्रॉब्लम, औरों की मदद लेके कर लेंगे। तो खुद क्या कर सकते हैं? खुद ये कर सकते हैं कि अगर कोई ऑनलाइन ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, हम उसको ऑनलाइन देख लें, गूगल से देख लें, अपने सीनियर्स की हेल्प ले लें, उनकी अगर उन्होंने वो कोर्स कर चुके हैं उनकी हेल्प ले लें। तो ये 2 तरीके हमारे पास हैं जब हम, और टाइम को वेस्ट नहीं करें। अभी हमारे पास इतना टाइम है, हमें मिला है, जो शायद हमें नहीं लगता कि कभी भी फ्यूचर में हमें इतना टाइम मिलेगा। मतलब हम लोग एज पीडियाट्रिशियंस अप टू डेट इतना अपने को कर ले रहे हैं डेली कि हमें लगता है पिछले 30 साल में हमने इतनी पढ़ाई नहीं करी होगी जितने हमने इतने 2 महीने में कर ली। तो स्टूडेंट्स भी ये कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग में अगर हम जाएंगे तो मुश्किल होगा। हम दूसरों की हेल्प लें, एक टाइम रूटीन बनाएं। पहले तो आइडेंटिफाई करें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीजों में हमारी वीकनेस है, उन चीजों को लेके बढ़ें। लेकिन सिर्फ उसी के पीछे पड़ेंगे तो बाकी छूट जाएगा। तो हम 2 स्लॉट में डिवाइड कर लें। एक चीजें जो हमें रिवाइज करनी है, एक चीजें जो हमें आती नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। तो वो इन्फॉर्मेशन लें, उसका मनन करें और उसको सीखें। और साथ में ये भी याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं इसमें। जितने बच्चे हैं पूरे स्टेट, पूरे वर्ल्ड के साथ ये प्रॉब्लम है, तो बाकी सब बच्चे भी उसी चीज से गुजर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपकी पढ़ाई छूटी है, उन सभी की छूटी है, और सब ये नए नए तरीके सीख रहे हैं समय के साथ, क्योंकि जिस तरह के रूटीन से हम यूज्ड टू थे पहले, वो अब बदल चुका है। तो आपके टीचर्स भी ये नए रूटीन को सीख रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। इसलिए अपने साथ
ज्यादा हार्श होने की भी जरूरत नहीं है। और जैसे डॉक्टर शालिनी ने कहा कि अपने रूटीन को सिस्टमेटिक करें और देखें कि क्या आपको सीखना है, क्या आगे कैसे प्लान करना है, और बहुत अच्छे ढंग से आप प्लान कर सकते हैं। मैं जी डॉक्टर। एक चीज में ऐड करूंगी कि बच्चों को जो पढ़ाई के लिए कंसर्न है ना, ये टाइम पढ़ने का बहुत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई छोड़ दो, बट आपको सिर्फ देखो, पढ़ना हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को सिर्फ पढ़ाई में स्पेंड नहीं करना, बल्कि ये टाइम तो इन्वेस्टमेंट टाइम है। देखो बहुत से वो काम कर सकते हैं जो कि आप पढ़ाई के कर ही नहीं पाते थे, लाइक गार्डनिंग, लाइक हॉबीज, लाइक लर्निंग न्यू समथिंग न्यू। तो पढ़ाई ठीक है अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई के अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, उससे वर्कआउट करो। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी कमजोर है, आप उससे वर्कआउट करो। अगर आपको लगता है कि आपको खाना बनाना नहीं आता है, यू वांट टू बी अ शेफ, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, तो पढ़ाई के अलावा 10 चीजें और क्या कर सकते हैं, उसके भी कॉन्सेंट्रेशन करना है। मैं प्लीज टेक द हेल्पलाइन नंबर। जी बताइए। व्हाट्सएप का जो हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप का, वो है 721-77-35372। I'll repeat again. It's a WhatsApp helpline number 721-77-35372, और जो विमेन हेल्पलाइन नंबर है वो 181 और 112 है। तो जिस केस में जहाँ पे आपको लग रहा है डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा है, इमोशनल अब्यूज ज्यादा है, इनफैक्ट सेक्सुअल अब्यूज भी है, वहाँ पे अपने आप को बचाना कैसे है, अपनी बातों को एक्सप्रेस कैसे करना है, विस्पर करो, शाउट करो, स्क्रीम करो, लोगों से कनेक्ट करो, लेकिन अपनी झेलो मत। ओके, so this is what my message is. और इसमें एक चाइल्ड लाइन नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 1098 है ना, तो उस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप परेशानी में है तो। संगीता जी, आई वुड सजेस्ट कि चैट में ये सारे नंबर्स किसी से डलवा दीजिए। हाँ नवीन जी, कैन नोट इट डाउन। नवीन जी आर यू देयर? अच्छा हाँ जी, हाँ जी ठीक है। एक और चीज है, बस ये आखिरी सवाल मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, डॉक्टर शाजिया एंड डॉक्टर शालिनी। Yes, ma'am. जो अधिकतर हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं कि वो गैजेट ओवर यूज से संबंधित है। सारे गैजेट्स का ओवर यूज होता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, स्क्रीन्स पे ही रहते हैं बच्चे और अपने रूटीन को सिस्टमैटिकली मैनेज नहीं कर पाते। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही बारी बारी से अपनी सलाह दें। डॉक्टर शाजिया आप बताएं प्लीज पहले। कि सबसे पहले तो मोबाइल को अलार्म की तरफ इस्तेमाल मत करो, ठीक है, क्योंकि अलार्म की तरफ इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने मोबाइल देखा, वो मत करो, ठीक है। रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, ठीक। अगर मोबाइल इस्तेमाल करना है तो आजकल बहुत ढेर सारे ऐप्स आ गए हैं जो आपको ये बताता है कि आपने किस साइट पे कितना वक्त स्पेंड किया। तो अगर वो प्रोडक्टिव साइट्स हैं तो दिन का 1 घंटा 2 घंटा प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो। बाकी जो आपकी पढ़ाई हो रही है वो भी तो ऑन स्क्रीन हो रही है, तो वहां का भी स्क्रीन जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो लिमिटेड करो। देखो प्रॉब्लम, गैजेट इज समथिंग वेरी यूजफुल भाई, टेक्नोलॉजी तो आज का पावर है, उसका यूज, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसका मास्टर बनना है, उसका स्लेव नहीं बनना है। हमारे पास में सुपर लैपटॉप है दिमाग ये, लेकिन अगर इससे सब्जियां चॉप करेंगे तो एप्पल भी वो फूड चॉपर की तरह इस्तेमाल होगा। तो इस बेहतरीन दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है वही हमें सीखना है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें सीखना है। गैजेट अंडर यूज भी नहीं, ओवर यूज भी नहीं, जुडिशियस यूज इज व्हाट वी हैव टू लर्न। कि हमारी पढ़ाई भी तो गैजेट पे है, हमारे सारे काम भी तो गैजेट पे है। तो जहां पे कट आउट कर सकते हो वो है सोशल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, जिसका कोई मतलब नहीं है। जो 10-15 मिनट कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां उसको लिमिट करो। बाकी प्रोडक्टिव काम कर रहे हो देन डू इट। ओके, so थैंक यू डॉक्टर शाजिया। So, I think very rightly said by डॉक्टर शाजिया कि हमें उसका स्लेव नहीं बनना है, वो हमारा स्लेव है। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही हम मोबाइल नहीं देखेंगे। बाथरूम जाते हैं तो अक्सर लोग मोबाइल लेके जाते हैं, वहां आधा घंटा मोबाइल पे लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता, वहां नहीं ले जाएंगे। डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, वहां नहीं ले जाएंगे। बेडरूम में मेरा मोबाइल बिस्तर पे लेट के रात में बिल्कुल नहीं, बिग नो। When we are interacting with our family, I mean it is so insulting कि 4-6 लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं फैमिली में और 2-3 लोग अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। नॉट डन। सो ये रूल्स हम अब खुद नहीं, हम अपनी पूरी फैमिली के लिए ये बना दें, इवन फॉर द एल्डर्स इन द फैमिली, इवन फॉर द यंगर्स, एंड वी हैव टू बी रोल मॉडल्स। सो अगर जैसा हो सकता है हम इतना करते थे और हम सडनली अब हम यंगस्टर हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि यूथ है, मम्मी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आज से मैं एक
You be assertive. Take things in your charge. You are a COVID hero. Become that. Become the change hero. Tell your parents, भाई हम लोग सब बहुत यूज कर रहे हैं और हमने डिसाइड किया है कि ये समय पे हम मोबाइल या गैजेट को यूज नहीं करेंगे. एंड वो तभी क्यों करते हैं लोग? एक बोरियत की वजह से आदत पड़ गई है. तो हम लोग कुछ एक्टिविटीज प्लान रखें. कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कौन मोबाइल यूज करेगा कैरम बोर्ड के बीच में? चेस खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कौन करेगा यूज? नहीं करेगा ना. तो मेरे पास क्योंकि कोई और एक्टिविटी नहीं है तो क्या करा भाई, अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं या सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया तो इज अ बिग नेगेटिव थिंग एंड अ बिग नो नो. बट इवन सोशल मीडिया नहीं होता फिर भी हमने देखा है कोई भी चीज लेके लोग लगे रहते हैं. तो इन सब चीजों को अगर हम डिसाइड कर लें, डिसिप्लिन कर लें अपने को कि इस समय पे तो हमने नहीं यूज करना, so that will be a big help. Thank you so much, Dr. Shalini. And I think जितनी बातें आप लोगों ने बताई हैं इस वेबिनार में वो बहुत ही यूजफुल हैं और मैं चाहूँगी कि वेरी क्विकली इसको हम सम अप कर लें 5-6 पॉइंट्स में. तो डॉक्टर शालिनी, वी बिगिन विद यू. जो भी आपने इस वेबिनार में बताया, वेरी क्विकली इन 30 seconds प्लीज सम इट अप. So I think we have to be prepared, the youth has to be prepared to fight this war with good health management, which would consist of proper nutrition, proper exercise and adequate sleep. Then we must have. हिंदी में बताइए. अच्छा ठीक है. तो इस लड़ाई को, जंग को लड़ने के लिए हमें तैयारी रखनी है, अपनी सेहत को ठीक करनी है, जो कि हम अच्छी खुराक, बढ़िया एक्सरसाइज और पूर्ण नींद के साथ कर सकते हैं. दूसरी चीज, हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, एक रूटीन बनानी है जो कि हमारे पहले इस क्राइसिस से पहले की रूटीन के अनुसार होगी, उसको फॉलो करना है. लिख के बना लीजिए उसको. और एक्टिव रहना है अपने लिए. खाली समय पे क्या करेंगे, इन सब चीजों को सुनिश्चित कर लें और एक लिस्ट अगर ना समझ में आए तो लिख के लगा दीजिए. और नेचर से कनेक्ट करना है. इसके अलावा अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं अपने परिवार के साथ, अपने एक्सटेंडेड परिवार के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो ऑनलाइन और वर्चुअल वर्ल्ड में क्यों ना हो. हमें दूसरों की मदद करनी है जिससे कि हमें अच्छी फीलिंग आए. और हमें अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करना है, बिकॉज उसी से हम एक पूर्ण इंसान बन सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं. हम क्या करना चाहते हैं, हम किस चीज में हमारा रुचि रहती है, उन चीजों को हम जानें. किन चीजों से डरते हैं, किस चीजों की हमें फिक्र है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उनको समझें, उनको बदल सकें तो बदलें और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करें. एंड अबव ऑल हमें अपने फैक्ट्स बिल्कुल सही लेने हैं, रखने हैं और रिलायबल सोर्स से लेने हैं. और अगर ये रहेंगे तो हम अपने को सशक्त कर लेंगे, जिससे कि हमारे अंदर भय, हर प्रकार का भय दूर रहेगा. एक्टिव रहेंगे, अच्छा रहेगा. एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, वो उसको अवॉइड करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर शालिनी. थैंक यू. डॉक्टर शाजिया, वेरी क्विकली. ओके. सो सिर्फ कुछ बातें याद रखनी है. सबसे पहले चार्ज योर बैटरीज, जिसके बारे में शालिनी मैम ने कहा. दूसरी बात, नेगेटिव सोच आ रहा है उसको स्टॉप करना है, प्रोडक्टिव काम में एंगेज करना है. तीसरी चीज, जब परेशानी में होंगे अपनी वैल्यूज की तरफ मूव करना है, उनसे अगेंस्ट नहीं मूव करना, ताकि आप भंवर से इमोशनल मेस में जो आप फंसे हुए हैं उससे आप बाहर आए. तो जब किसी और का मेस है, किसी और के मेस में शामिल मत होइए, उसकी अपनी शांति में उनको इंक्लूड करिए. सो डोंट इंडल्ज इन समबडी एल्सेस मेस, पुल देम टुवर्ड्स योर पीस. ओके. तो कोई घर में अशांति है, उसे दूर कैसे रहना है ये सीखना है. प्रॉब्लम है उसको लिखो, अपने थॉट्स को, इमोशंस को आइडेंटिफाई करो कि ये चीज मुझे परेशान कर रही है. याद है बचपन में कर्सिव राइटिंग में लिखते थे, क्रोध मनुष्य का शत्रु है. हर बच्चे की कर्सिव राइटिंग में ये जरूर होता है. तो क्रोध से, परेशानी से रिस्पॉन्ड नहीं करना है, सोल्यूशन से रिस्पॉन्ड करना है, हेल्प सीख करनी है. दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सबको यह पता है. दीपिका पादुकोण इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की हेड है, वो है फेस. शी हैज कम आउट, वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि वो डिप्रेशन से गुजरी है. आलिया भट्ट डिप्रेशन से गुजरी है और सबने हेल्प सीख करी है. तो कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है, ये हमारे दिमाग में है. अगर आपको लगता है कि आप परेशान, और ये एक बड़ों के लिए है एक सिंपल सा सुझाव, जब आपसे कोई बच्चा कहता है मम्मी मैं परेशान हूँ, तो ये मत कहिए किस बात की परेशानी, तो बस तो सब कुछ है. क्योंकि जब कोई एस्थमेटिक पेशेंट आता है ना, तो आप उससे ये नहीं कहते हो कि भैया सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है, इतनी तो हवा है. उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है और एक्सेप्ट करना है और उससे कहना है बेटा ये मुश्किल का वक्त है, खत्म हो जाएगा, ये मुश्किल की घड़ी है, खत्म हो जाएगी. तो जस्ट यूज दिस टाइम
इस टाइम का जुडिशियल इस्तेमाल करो, यही सीखना है। मुश्किल का वक्त पार हो जाता है, ये वक्त भी हम साथ में गुजार लेंगे। क्यों नहीं पूछना है कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है, तो लिसन टू योर चाइल्ड, निगोशिएट करना सीखिए अपने बच्चों के साथ। मारना पीटना, पावर स्ट्रगल इज अ बिग नो। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शाजिया। और इसी नोट पे हम समाप्त करते हैं कि ये मुश्किल वक्त है लेकिन ये भी गुजर जाएगा, और हमारे पास हमारी हिम्मत है, हमारी, जैसे डॉक्टर शालिनी ने कहा कि हमारी सोच पर कंट्रोल करने की शक्ति हमारे पास है, और अगर हम अपनी सोच को कंट्रोल करेंगे तो हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे, उससे हमारे एक्शंस पे भी कंट्रोल होगा। तो कल फिर हम इसी समय 5:30 से 6:30 के बीच में आपके साथ एक और वेबिनार से जुड़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कोविड हीरोज की, आपका लाइव इंटरैक्शन कराएंगे। तो कल तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार से जुड़ने के लिए। हमें आशा है कि आपको दी गई जानकारी, सूचनाएं, तरकीबें सब बहुत अच्छी लगी होंगी और आप उसका उपयोग भी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।